آج کی کہانی ہے ایک ایسے بیوقوف لڑکے کی جس پر سب ہنستے تھے، لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی لڑکا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور جواب ایسے دیے کہ سب دنگ رہ گئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مزاحیہ مگر حیران کن سفر کمال کے کمال کا۔ پرانے وقتوں کی ایک پرسکون وادی میں گاؤں کے بیچوں بیچ ایک مٹی کا گھر تھا۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اس میں ایک دنیا آباد تھی، دنیا جس میں کمال نام کا ایک ایسا لڑکا رہتا تھا جسے پورے گاؤں والے اور اللہ کی قدرت کا انوکھا شاہکار کہتے تھے۔ کچھ لوگ پیار سے اور زیادہ تر لوگ مذاق میں۔ کمال قد کاٹ میں ٹھیک، صحت میں تگڑا، مگر دماغ کے معاملے میں خیر، دماغ کی جگہ وہ جو کچھ استعمال کرتا تھا اس میں عقل کم اور عجیب و غریب خیالات زیادہ تھے۔ وہ ہر بات کو الٹا سیدھا سمجھتا اور ایسی بات کر دیتا کہ سامنے والے کی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے۔ کمال کی ماں زبیدہ بی بی ایک صابر عورت تھی۔ شوہر کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا اور وہ گاؤں والوں کے کپڑے سینے، ٹوپیاں بنانے اور کبھی کبھار کھیتوں میں مزدوری کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ سارا سہارا بس کمال ہی تھا، جو سہارا دینے کے بجائے اکثر اسے پریشان کر دیتا۔ ایک صبح زبیدہ بی بی صحن میں آٹا گوندھ رہی تھی اور کمال دیوار پر چڑھ کر مرغیوں کو لیکچر دے رہا تھا۔ دیکھو بھائی، انڈا دینے کے بعد شور مت کیا کرو، لوگ چوری کر لیتے ہیں، چپکے سے دو اور پھر آرام سے بیٹھو۔ ماں نے زور سے ڈانٹا۔ وہ کمال، دیوار سے نیچے آ، مرغیوں کو عقل سکھانے کے بجائے خود عقل سیکھ۔ کمال نے نیچے اترتے ہوئے معصومیت سے کہا، امی، مرغیوں کو عقل آ گئی تو ہمیں روز انڈے ملیں گے، یہ سرمایہ کاری ہے۔ زبیدہ بی بی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، لوگ اپنے بیٹے کو زمین کا کام سکھاتے ہیں اور میرا بیٹا مرغیوں کی تربیت میں لگا ہے۔ محلے کی گلی میں جاتے ہوئے بھی کمال کی حرکتیں ختم نہ ہوتی۔ ایک دن بڑھیا اماں کہہ رہی تھی، بیٹا ذرا کنواں صاف کروا دو۔ کمال فخر سے بولا، جی اماں، کنواں تو صاف کر دوں گا لیکن پانی بعد میں بھر دینا، ابھی میں نے نہانا ہے۔ گاؤں کے لڑکے پیچھے سے ہنسنے لگے۔ کمال، تیرے دماغ میں ہمیشہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے کیا؟ کمال نے فوراً جواب دیا، ہاں ہوتا ہے، لیکن کم از کم میرا دل ہمیشہ آن رہتا ہے۔ کمال کے دو دوست تھے، شکیل اور منور، دونوں شرارتی اور کمال کی معصومیت کے مزے لینے والے۔ اکثر اسے چکر میں ڈال کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ایک دن شکیل نے کہا، کمال، تجھے پتا ہے جنگل میں ایک جھیل ہے جہاں مچھلی پکڑو تو وہ سونے میں بدل جاتی ہے۔ کمال نے حیران ہو کر کہا، واقعی؟ پھر تو ہم کل ہی چلتے ہیں۔ منور نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، لیکن وہاں جانا آسان نہیں، بڑے بڑے شکاری بھی ڈرتے ہیں۔ کمال نے سینہ پھلا کر کہا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، بس راستہ لمبا نہ ہو، میں کھانے کا سامان ساتھ رکھ لوں گا۔ اس شام گھر آ کر کمال نے ماں سے کہا، امی، کل میں شکار پر جا رہا ہوں۔ زبیدہ بی بی چونک گئی۔ شکار؟ تو اور شکار؟ ارے بیٹا، تو نے کبھی مرغی بھی نہیں پکڑی؟ کمال نے اعتماد سے کہا، امی، یہ کوئی عام شکار نہیں، یہ قسمت کا کھیل ہے، وہاں کی مچھلی سونے کی ہے۔ ماں نے غصے سے کہا، یہ تجھے شکیل اور منور نے بہکایا ہے نا؟ کمال نے گردن ہلائی۔ ہاں، لیکن میں بھی کم عقل نہیں، اگر سونے کی مچھلی مل گئی تو آپ کے لیے محل بنا دوں گا۔ ماں نے بے بسی سے کہا، بیٹا، محل سے پہلے اگر گھر کی چھت ٹھیک کر دے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ صبح سویرے شکیل اور منور لاٹھیاں اور ایک پرانا جال لے کر کمال کے گھر آ گئے۔ کمال نے پرانی ٹوپی، کاندھے پر تھیلا اور ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی پکڑ لی جیسے کوئی تجربہ کار شکاری ہو۔ ماں دروازے پر کھڑی کہہ رہی تھی، دیکھ بیٹا، زیادہ دور مت جانا، جنگل میں بادشاہ کے شکاری رہتے ہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ کمال نے مسکرا کر کہا، امی فکر نہ کریں، میں اپنی عقل ساتھ لے جا رہا ہوں۔ زبیدہ بی بی نے زیر لب کہا، اللہ رحم کرے، یہی تو سب سے خطرناک چیز ہے۔ تینوں دوست گاؤں سے نکل کر جنگل کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں کمال ہر چیز پر تبصرہ کرتا، یہ درخت دیکھو، اس کی شاخیں ایسے مڑی ہیں جیسے دادی اماں کی انگلیاں، یا پھر یہ پرندہ دیکھو، بالکل شکیل جیسا ہے، منہ کھلا اور آواز زیادہ۔ شکیل اور منور ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے مگر کمال پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، قدرت کے یہ نظارے انسان کو فلسفی بنا دیتے۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ منور نے کہا، کمال، جوتے اتار کے پار جا، پانی میں بھیگ گئے تو مشکل ہوگی۔ کمال نے جوتے اتارے اور کہنے لگا، واہ، یہ تو کمال کا انتظام ہے، پانی بھی مل گیا اور راستہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ شکیل نے منور کے کان میں کہا، یہ بندہ کسی دن ہمیں ہنساتی ہنساتی مار دے گا۔ دوپہر تک تینوں جنگل کے اندر گہرائی میں پہنچ گئے۔ کمال خوش تھا کہ ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ملا۔
लेकिन वो नहीं जानता था कि असल मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है, वो मुसीबत जो सीधा उन्हें बादशाह के शिकारी कैंप तक ले जाएगी। कमाल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। शकील ने आहिस्ता कहा, यह क्या आवाज है? कमाल ने फौरन अंदाजा लगाया, यह यकीनन सोने की मछली के तैराकी करने की आवाज है। मुनव्वर ने सर पेट लिया, यार, मछली तैराकी में जमीन नहीं हिलाया करती। जैसे ही वो मोड़ काटे, सामने एक खुला मैदान आ गया। दरमियान में बड़े बड़े खेमे, घोड़े बंधे हुए, नेज़े और कमानें तरतीब से रखी थीं। चंद आदमी सोने के रंग के लिबास में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे और एक तरफ हांडियों में खुशबूदार सालन पक रहा था। कमाल की आंखें चमक उठीं। वाह, देखो, ये तो जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए दावत का इंतजाम है। शकील ने कान पकड़ते हुए कहा, यह दावत नहीं, यह बादशाह का शिकारी कैंप है। मुनव्वर ने जल्दी से कहा, चुप करके वापस चलते हैं, वरना उनके तीर सीधे पीठ में लगेंगे। मगर कमाल को कहां समझ आना था। वो बड़े एहतिमाद के साथ कैंप की तरफ बढ़ा, जैसे वही उनका सरबराह हो। एक सिपाही ने उसे देखा और चौंक कर बोला, वो ये कौन है जो शिकारगाह में घुस आया? दूसरे सिपाही ने कमान उठाई, बादशाह के हुक्म के बगैर यहां कोई आम आदमी नहीं आ सकता। शकील और मुनव्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने हाथ उठाकर कहा, रुको रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूं, और अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर सिपाहियों के कहकहे गूंज उठे। एक सिपाही ने तंज किया, वाह भाई, यह तो हमारे पूरे दरबार के सबसे बड़े शिकारी से भी बड़ा फलसफी है। दूसरे ने कहा, चिल्लू, बादशाह को नया मजाक सुनाने के लिए कुछ मिल गया, से महल ले चलते हैं। इससे पहले कि शकील या मुनव्वर कुछ बोलते, तीनों को सिपाहियों ने घेर लिया। घोड़े लाए गए और सबको जबरदस्ती सवार करके कैंप से रवाना कर दिया गया। कमाल ने मजे से घोड़े पर बैठते हुए कहा, वाह, ये तो सर्विस भी दे रहे हैं। पैदल जाने की मेहनत बच गई। रास्ते भर सिपाही हंस हंस कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। एक सिपाही ने पूछा, तुझे पता भी है कि बादशाह से मिलना आसान नहीं? कमाल ने फौरन कहा, हां, इसीलिए तो मैं बराह रास्त पकड़वा कर जा रहा हूं, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। महल का बैरूनी दरवाजा देखकर मुनव्वर की घुघी बंध गई। शकील का रंग उड़ गया, मगर कमाल खुशी से बोला, इतना बड़ा घर है, जरूर अंदर सोने की मछली का बड़ा सा पूल होगा। सिपाही सबको अंदर ले गए। बड़े बड़े सुतून, संगमरमर का फर्श और दीवारों पर शिकार के मनाजिर। कमाल ने हर तस्वीर पर टपनी दी, ये हिरन तो ठीक है, मगर इस शेर की मूंछें कुछ कम लग रही है। एक सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया, बादशाह को यह भी बता देना, शायद वो शेर को दोबारा मूंछें लगा दे। आखिरकार वो तीनों एक वसी हाल में लाए गए, जहां बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। सर पर सुनहरी ताज, हाथ में कीमती असा और साथ वजीर व मुशीर। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, कौन हैं ये लोग? सिपाही ने झक कर कहा, जहां पना, ये जंगल में शिकारी कैंप में घुस आए थे और ये बेवकूफ लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था। हाल में हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कमाल को देखा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? कमाल ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम कमाल है और मैं अपने नाम की तरह कमाल करता हूं। बादशाह ने मजीद मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम में कुछ खास है, लेकिन फैसला बाद में करूंगा। अभी तुम्हें महल में रखा जाएगा ताकि तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जांच हो सके। शकील और मुनव्वर ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाहते हूं, अब गया हमारा काम। मगर कमाल इत्मीनान से बोला, ठीक है जहां पना, लेकिन खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को महल के मेहमान खाने में ले जाकर बंद कर दिया। कमाल चारपाई पर लेटते ही बोला, देखा, पैदल मछली पकड़ने निकले थे और यहां आकर बादशाह के मेहमान बन गए। उन्हें यह नहीं पता था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है और यह बेवकूफ लड़का आने वाले दिनों में महल की फिजा ही बदल देगा। मेहमान खाने की खिड़की से महल का बाग नजर आ रहा था, रंग बरंगे फूल, फवारे और सुनहरी मछलियों वाले तालाब। लेकिन कमाल की नजर सबसे पहले इस बड़े तरबूज पर पड़ी जो बावर्ची बाग में रख गए थे। उसने शकील को कोहनी मारते हुए कहा, देख वो तरबूज, अगर वो आधा मेरे हिस्से में आ जाए तो बाकी सब तुम बांट लेना। शकील ने गुस्से से कहा, यह महल है या मेला समझ रखा है? हमें यहां पकड़कर रखा है, पता नहीं कल क्या होगा। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, कल तो अल्लाह के हाथ में है, आज तो तरबूज के बारे में सोचो। इसी दौरान दो सिपाही अंदर आए, हाथ में चांदी के बर्तन जिनमें खाना भरा था। शकील और मुनव्वर ने एहतियात से हाथ लगाया, मगर कमाल ने डट कर कहा, वाह, यह है मेहमान नवाजी।
वैसे अगर बादशाह को पता चल जाए कि हम रोज इतना खा सकते हैं तो हमें रख लेगा। सिपाही हंसते हुए चले गए और एक दूसरे से कहा, यह लड़का किसी और ही मिट्टी का बना है। अगले दिन सुबह महल के किचन के बाहर शोर सुनाई दिया। कमाल तजस्सुस में वहां पहुंच गया। बड़े बड़े देगचे उबल रहे थे, कीमे के कबाब तले जा रहे थे और मिठाइयों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। कमाल ने बावर्ची से पूछा, भाई ये सब किसके लिए है? बावर्ची ने कहा, आज बादशाह के खास मेहमान आ रहे हैं, दावत है। कमाल ने फौरन कहा, तो एक दो प्लेट हमारे कमरे में भेज देना, हम भी तो खास मेहमान हैं। महल में इसकी मासूम शरारतों के किस्से तेजी से फैलने लगे। सिपाही, नौकर, बावर्ची सब उसकी बातों पर हंसते, लेकिन बादशाह अभी तक जाती तौर पर उसे दोबारा नहीं मिला था, बस उसके बारे में सुन रहा था। वजीर खास ने बादशाह से कहा, जहां पना, यह लड़का अजीब है, लेकिन शायद सीधी बात सीधे तरीके से कह जाता है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है, कल उसे मेरे शिकार खाने में भेज दो, देखें क्या करता है। अगले दिन सुबह कमाल को शिकार खाने ले जाया गया। बड़े बड़े हिरन, शेरों के पिंजरों के करीब और दीवारों पर पुराने शिकार की तस्वीरें। कमाल ने एक तस्वीर देखकर कहा, यह शेर तो ऐसा लगता है जैसे बादशाह से डर गया हो। एक सिपाही ने दबे दबे लहजे में कहा, यह बादशाह का ही शिकार है। कमाल ने कंधे उचक्का कर कहा, फिर तो ठीक है, बादशाह को खुश करने के लिए डरा हुआ लगना पड़ता है। दोपहर को बादशाह शिकार खाने में आया। कमाल को देखते ही बोला, तो तुम वही हो जो सोने की मछली पकड़ने आया था? कमाल ने संजीदगी से कहा, जी, और अभी तक यकीन है कि वो कहीं ना कहीं यहां मौजूद है। बादशाह ने हंसकर कहा, लगता है तुम अपने मकसद से कभी नहीं हटते। कमाल फौरन बोला, हटूं भी क्यों? जो आदमी रोज मकसद बदलता है वो कभी मछली नहीं पकड़ पाता, चाहे वो कांटे के बगैर जाल ही क्यों ना फेंके। बादशाह ने वजीरों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, यह लड़का अजीब है, मगर कुछ बातें कमाल की भी है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि कमाल और उसके दोस्तों को मजीद कुछ दिन महल में रखा जाए। कमाल के लिए यह मजे का मौका था, कभी बाग में टहलना, कभी किचन में घुस जाना, कभी सिपाहियों से तीर अंदाजी सीखना। लेकिन इस सब के बीच बादशाह के जहन में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। उसने सोचा, यह लड़का आ तो बिल्कुल बेवकूफ है, या फिर इतना सीधा है कि सच्चाई को हम सबसे पहले देख लेता है। उसका इम्तिहान लेना चाहिए। अगली सुबह वजीर खास कमाल के कमरे में आया और बोला, बादशाह सलामत ने फैसला किया है कि कल तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। शकील और मुनव्वर की जान हल्क में आ गई, मगर कमाल ने सुकून से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर सवाल मुर्गियों के बारे में हुआ तो मेरा जवाब सबसे बेहतरीन होगा। वजीर हंसता हुआ चला गया और कमाल ने अपने दोस्तों की तरफ मोड़कर कहा, देखना, कल मैं ऐसे जवाब दूंगा कि बादशाह को खुद शक हो जाएगा कि वजीर कौन है। रात का वक्त था। महल के एक गोशे में बादशाह अपने वजीरों के साथ बैठा था। वजीर खास ने कहा, जहां पना, यह कमाल बड़ा निराला है, सीधी बात भी उल्टी कर देता है, लेकिन कभी कभी उल्टी बात सीधी निकल आती है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, इसीलिए तो कल का खेल दिलचस्प होगा। मैं 3 सवाल ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब बड़े बड़े अक्लमंदों को भी सोचना पड़े। देखें यह लड़का क्या करता है। वजीर ने नोट लिखे, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? बादशाह ने कहा, ये सवाल सीधे भी हैं और उलझे हुए भी। अगर यह लड़का उनका जवाब दे गया तो मान लूंगा कि कुदरत ने इसे खास बनाया है। इधर कमाल अपने कमरे में बैठा हुआ शकील और मुनव्वर को अपनी तैयारी में दिखा रहा था। उसने 3 खाली कटोरे रखे थे। शकील ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? कमाल ने एतमाद से कहा, यह कल के सवालों के जवाब है। मुनव्वर ने माथे पर हाथ मारा, टोरे जवाब कैसे हो सकते हैं? कमाल ने हंसकर कहा, देखो, अगर सवाल खाने का आया तो ये कटोरे भरे जा सकते हैं। अगर सवाल प्यास का आया तो उनमें पानी आ सकता है, और अगर सवाल दिमाग का आया तो खैर वो अभी खाली है। शकील हंस हंस के दोहरा हो गया, यार कमाल, बादशाह तुम्हें वजीर नहीं महल का मिजाहिया बनाने वाला रखेगा। कमाल ने संजीदगी से कहा, वजीर हो या मिजाहिया, बस खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगली सुबह महल के सहन में एक बड़ा मजमा लग गया। सिपाही कतार में, वजीर तख्त के करीब, और बीच में सुनहरी कुर्सी रखी गई जिस पर कमाल को बिठाया गया। शकील और मुनव्वर एक तरफ खड़े कांप रहे थे, मगर कमाल अपनी टोपी संभालते हुए मजे से बैठ गया। बादशाह ने सबको खामोश कराया और कहा, कमाल, आज तुमसे 3 सवाल होंगे।
अगर जवाब सही दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। कमाल ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहां पना, कैद में खाना वक्त पर मिलता है ना? पूरा दरबार हंस पड़ा और बादशाह ने मुस्कुराकर पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कमाल ने जरा सोचा, फिर बोला, जहां पना, कीमती चीज वो है जो खोने पर वापस ना मिले, और वो है वक्त। क्योंकि सोना, चांदी, हीरे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, वजीर भी चौंके। बादशाह ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, बादशाह आधा बादशाह है और रियाया आधी है, क्योंकि बादशाह रियाया के बगैर कुछ नहीं और रियाया बादशाह के बगैर। वजीरों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाह रहे हूं, यह तो हमारे जवाब से भी अच्छा है। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? कमाल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, अल्लाह की कुदरत। ये हर जगह है, सब कुछ इसी से चलता है, मगर आंखों से नजर नहीं आती। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर तालियां और कहकहे एक साथ गूंजने लगे। शकील और मुनव्वर हैरान रह गए और बादशाह के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो एक बड़े फैसले का इशारा देती। बादशाह ने कहा, कमाल, तुमने तीनों सवालों के जवाब ऐसे दिए जो न सिर्फ अक्ल बल्कि दिल से भी दुरुस्त हैं। कमाल ने शरारत से कहा, जहां पना, मैंने कहा था ना कि मेरे कटोरे भरे हैं। बादशाह तख्त पर टेक लगाकर कुछ देर तक कमाल को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कमाल, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी, लेकिन वजीर बनने के लिए सिर्फ सवालों के जवाब देना काफी नहीं होता। वजीर को हालात में अक्ल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, अगर वजीर को हर वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े तो बादशाह क्या करेगा? पूरे दरबार में कहकहे गूंज उठे। बादशाह ने हंसते हुए हाथ उठाया, ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। कल तुम्हें एक मुश्किल सूरत हाल दी जाएगी। अगर तुमने इसमें सबको हैरान कर दिया तो वजीर का ताज तुम्हारे सर होगा। कमाल ने टोपी ठीक करते हुए कहा, जहां पना, ताज के साथ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जेरे लब कहा, यह लड़का वाकई अनोखा है। इस रात शकील और मुनव्वर कमाल के साथ मेहमान खाने में बैठे फिक्रमंद थे। शकील बोला, यार कमाल, आज तो तूने कमाल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं बादशाह क्या इम्तिहान लेगा। कमाल ने सुकून से कहा, इम्तिहान चाहे हो या शादी का वलीमा, मैं इसी मजे से करूंगा। मुनव्वर ने सर पेट कर कहा, यही मजा कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह दरबार में मजमा लगा हुआ था। बादशाह ने ऐलान किया, आज कमाल को वजीर बनने का आखिरी इम्तिहान दिया जा रहा है। इससे 3 काम करने हैं। एक ऐसा मसला हल करना जिस पर सब झगड़ रहे हैं, एक झूठ पकड़ना, एक सच ऐसा बोलना जो सबको चुप करा दे। कमाल ने कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, जहां पना, यह तो ऐसे है जैसे मुर्गी को अंडा देने और कौवे को उड़ाने का हुक्म देना। दोनों वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें आता है। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। 2 गांव वाले एक बिक्री पर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि ये इनकी है। कमाल ने बिक्री को देखा और बोला, ठीक है, बिक्री से ही पूछ लेते हैं। लोग हंसने लगे, मगर कमाल ने बिक्री के सामने दोनों मालिकान का नाम पुकारा। बिक्री फौरन एक के पास दौड़ गई। कमाल बोला, यही असल मालिक है, क्योंकि बिक्री के दिल को पहचानने के लिए कागजी सबूत की जरूरत नहीं। दूसरा इम्तिहान, महल के एक नौकर ने कहा कि उसने महल के गोदाम में कुछ नहीं छुआ, हालांकि चोरी का शक था। कमाल ने कहा, ठीक है, इसके हाथ धुलवा दो और पानी देखो। सब ने हैरानी से पूछा, क्यों? कमाल बोला, चोर हमेशा हाथ साफ करते वक्त ज्यादा एहतियात करता है, क्योंकि गंदगी से नहीं बल्कि निशान छुपाने से डरता है। नौकर के हाथ धुलाने पर पता चला कि उसकी आस्तीन के अंदर आटे का गुबार छुपा हुआ था, जो चोरी का सबूत था। तीसरा इम्तिहान, बादशाह ने कहा, अब एक सच ऐसा कहो जो सबको खामोश कर दे। कमाल ने दरबार के सब लोगों को देखा और बोला, हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है, लेकिन सबसे ज्यादा अक्ल उसके पास है जो ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता। दरबार में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हाल में तालियां और कहकहे गूंजने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, कमाल, तुमने ये इम्तिहान भी पास कर लिया, कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। कमाल ने इत्मीनान से कहा, जहां पना, कल ठीक है, लेकिन ताज के साइज का पहले बता दे, कहीं बड़ा ना हो और मेरी टोपी गिर जाए। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सुनहरे कपड़े, रंग बरंगे परचम और बड़े हाल में बादशाह का तख्त तैयार किया जा रहा था।
शकील और मुनव्वर बार बार कमाल को समझा रहे थे, यार कमाल, आज तुम वजीर बन रहे हो, जरा संजीदा रहना, लोगों को लगे कि बादशाह ने सही फैसला किया। कमाल ने बड़े सुकून से कहा, संजीदा रहने से आदमी बीमार हो जाता है, मैं तो खुश रहूंगा। वजीर का काम है लोगों को हंसाते रहना, रुलाता तो सब है। दरबार में कमाल को सुनहरी जुब्बा पहनाया गया, सर पर मोतियों वाला पगड़ी बांधी गई और वो बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से कमाल हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि इसने सच्चाई, हाजिर जवाबी और नियत से सबको हैरान कर दिया। हाल में तालियां और कहकहे गूंजने लगे। मां जुबैदा बीबी आगे बढ़ी, आंखों में खुशी के आंसू, और बेटे के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये दिन देखाओगे। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा था। बादशाह ने हंस कर कहा, कमाल, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? कमाल ने फौरन कहा, जहां पना, पहला हुक्म यह है कि महल के किचन में रोज एक देग खीर की बने और सबको मिले, क्योंकि भरा पेट ही खाली दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पूरा दरबार हंस हंस कर लूटपोट हो गया। वजीर खास ने कहा, जहां पना, इस वजीर के दौर में शायद ज्यादा फैसले खाने के बाद होंगे। कमाल ने फौरन जवाब दिया, फैसले खाने के बाद हों या हंसने के बाद, दोनों दिल से निकलते हैं। गांव में खबर पहुंची तो जो लोग कभी कमाल का मजाक उड़ाते थे, वही अब फख्र से कहते, कमाल हमारा गांव वाला है, इसकी अक्ल निराली है। कमाल की मां दरवाजे पर बैठी सबको कहती, देखा, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं, बस सीधा साधा है, और सीधे लोग ही सबसे आगे निकलते हैं। शकील और मुनव्वर भी मुस्कुरा कर बोले, यार कमाल, अब तो वजीर है, हमें ना भूलना। कमाल ने कहकहा लगाकर कहा, दोस्तों को कौन भूलता है, खास तौर पर वो जो वजीर बनने से पहले कर्ज में थे। शाम को महल की बालकोनी से कमाल ने गांव की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां खड़ा होऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि किस्मत की लकीर इंसान खुद नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है। बादशाह पास आकर बोला, कमाल, तुम वाकई एक कमाल हो, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे भी हंसना सिखा दिया। कमाल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, अब हंसते रहें, मैं वजीर रहूंगा। अगर अब नाराज हुए तो मैं खीर खाने महल के किचन चला जाऊंगा। और यूं बेवकूफ कहलाने वाला कमाल बादशाह का वजीर बन गया। वजीर भी ऐसा जो हाजिर जवाब, मिजाहिया, मगर नियत में साफ था। गांव वाले, दरबार के लोग और बादशाह सब इस पर फख्र करने लगे। बाज औकात अक्ल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में छपी होती है। अगर आपको ये